صحابہ کرام کی پوزیشن اتنی خراب تھی، کسی کے پاس سامان نہیں ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، کھانے پینے کی کمی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان اعلان کیا، اے میرے صحابہ، ہمیں تبوک جانا ہے جو ہزاروں کلومیٹر ہے، دور ہے، ہمیں ہزاروں کلومیٹر دور کا سفر کرنا ہے۔ اے میرے صحابہ، اس جنگ میں تم تعاون کرو، اس جنگ میں تم مدد کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سارے لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کرتے گئے۔ کوئی آیا ایک مٹھی جو دے کے چلا گیا، کوئی آیا ایک مٹھی گیہوں دے کر کے چلا گیا، کوئی آیا اتنا سا جو ہے مکئی دے کے چلا گیا۔ سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق تعاون کرتے گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عثمان غنی، تم بھی اس جنگ میں مدد کرو۔ حضرت عثمان غنی، غور کیجئے یہ کون سے صحابی ہیں میرے بھائیوں؟ تاریخ میں آتا ہے یہ بہت بڑے مالدار صحابی تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ حضرت عثمان غنی نے غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے کتنا تعاون کیا، کتابوں میں آتا ہے۔ سیرت صحابہ کے درخشاں پہلو کو آپ اٹھائیں، 930 اونٹ اور 70 گھوڑے غزوہ تبوک میں حضرت عثمان غنی نے تعاون کیا، چندہ دیا۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائی، 930 اونٹ، ایک اونٹ کی قیمت سعودی عرب کے اندر کتنا ہے آپ پتہ لگا سکتے ہیں، کئی لاکھ روپے ہے ایک اونٹ کی قیمت، ایک اونٹ کی قیمت لاکھوں لاکھ روپے ہے، اور 930 اونٹ دیے، 930 اونٹ، آپ کیلکولیٹر کیجئے کتنے تعاون کیے، اور 70 گھوڑے دیے، پھر اناج دیے، چاندی کے سکے دیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر دل کھول کر کے صحابہ کرام نے خرچہ کیا۔ جہاں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو مخاطب ہو کر کہا کہ یہاں پہ ہمیں دین کے معاملے میں ضرورت ہے، صحابہ کرام نے جتنا بھی جس سے جو ہو سکا بڑھ چڑھ کر کے تعاون کیا۔ میرے بھائی، مسجد نبوی کے تعمیر کرنے کی بات آئی، اللہ کے نبی نے کہا مسجد نبوی کی تعمیر کرنا ہے، مسجد نبوی کے چھت کی ڈھلائی ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے نبی، مسجد کے چھت کے ڈھلائی میں جتنا خرچہ لگے گا وہ سارا خرچہ میری طرف سے رہے گا، ہم خرچہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی نے دنیا کی نگاہوں نے دیکھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے لینٹر میں جتنا خرچہ آیا، چھت کی ڈھلائی میں جتنا خرچہ آیا، سارا خرچہ اپنی جیب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیو، آج ہم کتنا نبی کا ساتھ دے رہے ہیں، آج ہم اسلام کا کتنا ساتھ دے رہے ہیں۔ جہاں دین کا معاملہ ہے، جہاں مسجد کا معاملہ ہے، 100 روپے بھی جیب سے نکالنے میں ہماری جان نکلتی ہے۔ ہمارے سماج اور سوسائٹی کا یہ حال ہے، قوم کے لوگ اتنے مر چکے ہیں، لوگوں کا ضمیر مر چکا ہے کہ مسجد کے اندر جو امام و خطابت کرتا ہے، جس کے پیچھے 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، جمعہ کا خطبہ سنتا ہے، جس کے بغیر اسلام جو ہے ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا ہے، آج اس کے بارے میں ہمارے نظریات کیا ہیں میرے بھائی؟ قوم کے رہنماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے؟ کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں گاؤں سماج کے اندر، امام کی تنخواہ کی جہاں بات آتی ہے صاحب، 100 روپے، 140 روپے، 150 روپے سب گھر کے اندر فکس کر دیا جاتا ہے کہ ہر گھر سے اتنا روپے لیا جائے گا، مہینے کے 150 روپیہ لیا جائے گا۔ تو کچھ لوگ اتنے مکار ہوتے ہیں، ہم کو لوگوں نے بتایا کہ ادھر کے لوگ جب پیسہ اٹھانے کے لیے جاتے ہیں کہ امام کا تنخواہ دیجئے، تو کہتے ہیں ہم لوگ اس مسجد میں دے رہے ہیں، اور جب ادھر والے لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے کہتے ہیں ہم لوگ اس مسجد میں دیتے ہیں۔ یہ مکاری کس سے کر رہے ہو میرے بھائی؟ یہ مکاری کس سے کر رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مکاری کو دیکھ رہا ہے۔ تم انسان کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ تھوڑی نہ دے سکتے ہو۔ ذرا غور کیجئے، ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، آج کے اس دور میں، جبکہ آج کے اس دور میں سارے وسائل موجود ہیں، زندگی کے سارے وسائل موجود ہیں، کمانے کے سارے ذرائع موجود ہیں، اس ترقی یافتہ دور میں اگر کوئی انسان اپنے قوم کے رہنما کو اپنی مسجد کے لیے 100-150 روپے اگر تعاون نہیں کر سکتا ہے تو اس کو چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے، اس کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ایسے لوگ دھرتی کے بوجھ ہیں، اناج کے دشمن ہیں میرے بھائیو دوستو۔ ذرا غور کیجئے، آپ کیا کریں گے دنیا میں بچ کر کے؟
आप सहाबा करام की तारीख को उठाइए मेरे भाइयों। जब कुरान करीम के अंदर आयत नाजिल हुई, आए लोगों तुम उस वक्त तक भलाई नहीं पा सकते हो, जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते हो जब तक कि तुम सबसे महबूब चीज को अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर लो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। यह आयत करीमा जब नाजिल हुई, आए लोगों तुम हरगिज भलाई नहीं पा सकते हो, तुम हरगिज जन्नत में नहीं जा सकते हो यहाँ तक कि तुम सबसे महबूब चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च न कर दो। गौर कीजिए मेरे भाइयों, एक सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। गौर कीजिए, बात चल रही है अजमत सहाबा की, सहाबा कराम की अजमत को मैंने उठाया है। हजरत अबू तलहा अंसारी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। आने के बाद कहते हैं, आए अल्लाह के नबी मेरे पास एक बिरूहा का बाग है। बिरूहा कोई फल होता है। मेरे पास एक बिरूहा का बाग है और उस बाग में 600 खजूरों के दरख्त लगे हुए हैं। उस बाग में, उस गार्डन में वो बहुत सारे पेड़ हैं और 600 खजूरों के दरख्त हैं। 600 खजूरों के दरख्त है, दोनों तरफ खजूरों के दरख्त है, बीच में नहर जारी है। अल्लाह के रसूल अक्सर उस बाग में जाया करते थे और उस बाग के अंदर जाते थे, खजूर को ताज़ा ताज़ा खजूर तोड़ के खाते थे और नहर का ठंडा ठंडा पानी पीते थे। हज़रत अबू तलहा अल्लाह के नबी के पास आते हैं और कहते हैं, अल्लाह के नबी कुरान में आयत नाजिल हुई है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। आए लोगो तुम दुनिया में हरगिज भलाई नहीं पा सकते हो, तुम जन्नत में नहीं जा सकते हो यहाँ तक कि सबसे महबूब चीज़ को तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च ना कर दो। आए अल्लाह के नबी ये मेरे नज़दीक सबसे कीमती बाग है, ये सबसे महबूब मेरी नज़र में है। अल्लाह के नबी मैं अल्लाह के रास्ते में सदका करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू तलहा अंसारी ज़ालिका मालुन नाफ़े, ये तो बहुत ही नफ़ा बख्श माल है। ऐसा करो इस बाग को तुम अपने करीबी रिश्तेदारों में तकसीम कर दो, अपने करीबी रिश्तेदारों में बांट दो। हज़रत अबू तलहा अंसारी ने उस बाग को करीबी रिश्तेदारों में तकसीम कर दिया। आज के इस दौर के हिसाब से देखा जाए मेरे भाइयों तो करोड़ों की संपत्ति थी, करोड़ों का वो बाग था, लेकिन सहाबाए कराम के अंदर खर्च करने का जज्बा देखिए। जहाँ खर्च करने का मामला आता था, सहाबाए कराम किस तरीके से अल्लाह के रास्ते में लुटा दिया करते थे, किस तरीके से खर्च किया करते थे। कुछ सहाबा तो ऐसे आए, अल्लाह के नबी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम कैसे, हम आयत करीमा पर ये आयत करीमा जो कुरान करीम के अंदर नाजिल हुई, हम इन आयत करीमा पर हम कैसे अमल करें, क्या किया जाए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम जो कमाते हैं खाते हैं, हम कहाँ से ताउन करेंगे। फिर वो सहाबाए कराम जो गरीब सहाबा थे, जो मेहनत मजदूरी किया करते थे, मेरे भाइयों गौर कीजिए, इन वाक़यात पर रोशनी डालिए, इन वाक़यात को अपने आप में फिट कीजिए। हम अपने आप को कहाँ खड़ा करते हैं। वो गरीब सहाबा मदीना के मार्केट में जाते हैं, मदीना के बाज़ार में जाते हैं और मदीना के बाज़ार में ओवर टाइम काम करते हैं, रात में काम करते हैं। रात में काम करने के बाद जो मजदूरी मिलती है, जो पैसा मिलता है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च कर देते हैं, उसको अल्लाह के रास्ते में सदका कर देते हैं। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, सहाबाए कराम किस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में, फ़ी सबीलिल्लाह के रास्ते में खर्च किया करते थे। वल्लदीना माहू, जो लोग मेरे नबी के साथ हैं। आज हम नबी के उम्मती हैं, नबी के मानने वाले हैं, आज हम नबी का साथ कितना देते हैं, आज इस्लाम का साथ हम कितना देते हैं मेरे भाइयों। ज़रा गौर कीजिए, महीने में 400 रुपये हम पान खा करके ख़त्म करते हैं, चाय खाने में बैठ करके न जाने हम एक से एक आइटम मार के ख़त्म कर देते हैं। लेकिन जहाँ दीन का मामला आता है, जहाँ मस्जिद का मामला आता है, जहाँ मौलाना का मामला आता है, वहाँ 100-150 रुपये देने में भी हमारी नानी मरती है। ज़रा गौर कीजिए,
वल्लदीन माहू, जो लोग मेरे नबी के साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, और ये नबी के सहाबा दुश्मनों के लिए बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े रहमदिल हैं। दुश्मनों के लिए बड़े सख्त हैं। अल्लाह के नबी के सहाबा दुश्मनों के लिए बड़े सख्त हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं, दुश्मनों के साथ कोई रहम नहीं, कोई रियायत नहीं। ज़रा गौर कीजिए, जंग बदर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी की तरफ से लड़ रहे हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक का बेटा अब्दुर्रहमान काफिरों की तरफ से लड़ाई कर रहा है। कई मर्तबा ऐसा हुआ अबू बकर सिद्दीक की गर्दन उनके बेटे के सामने आई, लेकिन उनके बेटे ने छोड़ दिया। अब्दुर्रहमान ने नज़रअंदाज कर दिया कि मेरा बाप है। कई बार जो है अबू बकर सिद्दीक की गर्दन उनके बेटे के सामने आई, लेकिन अब्दुर्रहमान ने छोड़ दिया कि ये मेरा बाप है। फिर बाद में जब अब्दुर्रहमान भी इस्लाम ले आया, एक दिन बाप और बेटे दोनों खाना खा रहे हैं और दोनों में बात हो रही है। हज़रत अब्दुर्रहमान कहते हैं, अय अब्बा जान, अय अबू बकर सिद्दीक, गज़वा बदर में कई मर्तबा ऐसा हुआ कि आपकी गर्दन मेरे तलवार के नीचे आई, लेकिन हमने ये कहकर छोड़ दिया कि मेरा बाप है। बाप की मोहब्बत में मैंने नज़रअंदाज कर दिया। तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, अय अब्दुर्रहमान, अय मेरे बेटे, अल्लाह की कसम, अगर गज़वा बदर में तेरी गर्दन मेरे तलवार के नीचे आई होती तो मैं ये नहीं सोचता कि ये मेरा बेटा है, बल्कि मैं तो इस्लाम का दुश्मन समझ करके तेरी गर्दन उड़ा देता। मैं कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। तुमने छोड़ दिया, लेकिन मेरी नज़र के सामने अगर आ जाती, मेरी नज़र के सामने अगर तेरी गर्दन आती तो मैं तेरी गर्दन को तन से जुदा कर देता। काफिरों के लिए बड़ा सख्त है, काफिरों के लिए सहाबा कराम बड़े हार्ड हैं, बड़े सख्त हैं। उसी गज़वा बदर में मुसअब इब्न उमैर मुसलमानों की तरफ से लड़ रहे हैं और उनका सगा भाई अबू अजीज़ दुश्मनों की तरफ से लड़ रहा है। जब गज़वा ख़त्म हुआ, जब जंग ख़त्म हुई, 70 काफिर इस जंग में कैद कर लिए गए। 70 काफिर मारे गए और 70 काफिरों को अरेस्ट कर लिया, कैद कर लिया। मुसअब इब्न उमैर का भाई अबू अजीज़ को एक मुसलमान पकड़ करके ले जा रहे हैं। मुसअब इब्न उमैर कहते हैं, आए मेरे भाई, इसको जो मेरा सगा भाई अबू अजीज़ है, इसको पकड़ के अच्छी तरीके से बेड़ियों में जकड़ के ले जाना। इनकी माँ बहुत मालदार है, बहुत पैसा देगी इनको छुड़ाने के लिए, बहुत पैसा देगी, इनको अच्छी तरीके से बांध के ले जाना। अबू अजीज़ हैरान है कि मेरा सगा भाई मेरे बारे में इस तरीके से कह रहा है। अबू अजीज़ कहता है, आए मुसअब इब्न उमैर, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ, एक माँ के पेट से हमने जन्म लिया है और तुम ये कह रहे हो कि इससे ज़्यादा पैसा लेना, ये इसकी माँ बहुत अमीर है, बहुत पैसे वाली है। मुसअब इब्न उमैर कहते हैं, आए अबू अजीज़, मैं मानता हूँ कि तुम मेरे सगे भाई हो, हमने एक माँ के पेट से जन्म लिया है, लेकिन ये मेरा ईमानी भाई है और तुम मेरे ईमानी भाई नहीं हो। ईमानी भाई के होते मैं तुम्हें तरजीह नहीं देता हूँ, मैं तुझे कुछ नहीं समझता हूँ, जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर कोई रहम करने वाला नहीं हूँ। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये नबी के सहाबा दुश्मनों के लिए बड़े सख्त हैं, बड़े हार्ड हैं। रुहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस में बड़े रहम दिल हैं, आपस में इतने रहम दिल हैं। ज़रा गौर कीजिए मेरे भाइयों, जब सन 15 हिजरी में उमर इब्न खत्ताब के दौर में, उमर के दौर खिलाफत में जंग यरमुक हुई। जंग यरमुक मेरे भाइयों ये मौजूद है। जंग यरमुक एक खूनी जंग होती है। इस जंग में 3 सहाबी मैदान में पड़े हुए हैं। जंग खत्म होने के बाद 3 सहाबी जख्मी पड़े हुए हैं। एक सहाबी जो है पानी लेकर के जाते हैं मैदान में पानी पिलाने के लिए। जब एक सहाबी के पास जाते हैं तो वो सहाबी के पास जैसे ही पानी लेकर के पहुंचते हैं, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। जो दूसरे सहाबी दूर में पड़े हुए थे, वो आवाज़ देता है कि हमें पानी की ज़रूरत है। वो करा रहे हैं कि हमें पानी पिला दीजिए। वो पहला सहाबी है, वो कहते हैं कि उनके पास पानी ले जाओ, वो ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। जब दूसरे के पास पानी लेकर के पहुँचा तो दूसरा सहाबी कहता है कि तीसरे के पास ले जाओ, वो हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। वो पानी लेकर के तीसरे सहाबी के पास पहुँचा। जब तीसरे सहाबी के पास पानी लेकर के पहुँचा तो जैसे ही पहुंचा वो इंतकाल कर गए। वो लौट करके दूसरे के पास आया कि अब हम इसको पानी पिला देंगे, लेकिन जैसे ही पहुंचा ये भी इंतकाल कर गए। लौट करके पलट करके पहले सहाबी के पास आए, पहले सहाबी भी इस दुनिया से जा चुके। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, क्या दौर था, क्या जमाना था कि एक मुसलमान दूसरे
مسلمان بھائی کو ترجیح دیتے تھے اپنی پیاس پر دوسرے کو جو ہے دوسرے کی پیاس کو ترجیح دیتے تھے۔ آج ہم ہیں، ذرا غور کیجئے، آج ہمارے اندر کتنے جو ہے محبت ہیں، آج ہم دوسروں کے لیے جو ہے دوسروں کے لیے رحم دل ہیں، اپنوں کے لیے بڑا سخت ہیں۔ آج دنیا کے تمام معاملات میں دیکھ لیجئے، تھانوں میں سب سے زیادہ ہماری قوم کے لوگ آپ کو پھنسوانے والے ملیں گے، آپ جو ہے FIR کرانے والے، سب سے زیادہ ہم کو پھنسوانے والے، مقدموں میں پھنسوانے والے، دشمن کی جو ہے دشمن سے پکڑوانے میں سب سے زیادہ رول اور سب سے زیادہ ہاتھ اپنوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، تمام معاملات میں جتنے اپنے لوگ نقصان پہنچاتے ہیں اتنا دوسرے لوگ نقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ ہم کتنا الٹا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، بہت کچھ سادہ موضوع ہے، اگر اس موضوع پر ڈسکس کیا جائے تو بہت لمبا خطاب ہوگا۔ ہم جو ہے مختصر میں صحابہ کرام کی عظمت کو ہم نے بیان کیا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ صحابہ کرام کی عظمت کو ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہماری خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔